ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଏମଏସ୍ ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2025ରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଅପସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝେଇବି ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମଏସ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ 2025 ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର 4ଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ତେଣୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସାଇନ୍ସର ଡେ 1 ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଫୁଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କେମିତି କ'ଣ କାହିଁକି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଇଛି କ'ଣ, which of the following is not a vector quantity? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଫୋର୍ସ, ଏକ୍ସେଲରେସନ୍, ୱାର୍କ ଆଉ କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାର କେବଳ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥାଏ। ସ୍କାଲାର ଆଉ ଭେକ୍ଟର କ'ଣ, ଭେକ୍ଟର ଯାହାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଫୋର୍ସ ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଭେଲୋସିଟି ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସେଲରେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସ୍କାଲାର ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବେ ୱାର୍କ, ତାପରେ ହେଇପାରେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇପାରେ, ମାସ୍ ହେଇପାରେ, ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ କହୁଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟେଡ୍, WASTED, ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍, ପାୱାର ଆଉ କ'ଣ ନା ମାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଡେନ୍ସିଟି। ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସ୍କାଲାର ଆଉ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି ନା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଯେମିତିକି ଡବ୍ଲୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ୱାର୍କ ହେଲା, ଡବ୍ଲୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱାର୍କ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏରିଆ ହେଲା, ଏରିଆ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା, ସ୍ପିଡ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଥିବେ ହେଲା, ଟାଇମ୍। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇ ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ହେଲା, ଏନର୍ଜି। ଡି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍ ବି ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପି ହେଉଛି ପାୱାର ଆଉ ମାସ୍ ଆଉ ଡେନ୍ସିଟି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏତିକି କ'ଣ WASTED, ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ଟାଇମ୍, ପାୱାର, ମାସ୍, ଡେନ୍ସିଟି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଏତିକି ହେଉଛି ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତିକି ରହିଲା ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା ଫୋର୍ସ, ଏକ୍ସେଲରେସନ୍, ୱାର୍କ, ମୋମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ନଟ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କ'ଣ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ୱାର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ୱାର୍କ ଇଜ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍। ତେଣୁ ୱାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ W ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ FS ହେଲା କ'ଣ cos θ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବୁଝିପାରିଲେ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी न्यूटन्स फास्ट लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेस फोर्स इनर्शिया एक्सेलरेशन मोमेंटम। फास्ट लॉ को कौन कहै छै, अपन जानथिबे न्यूटन केतरा लॉ अछि, तीनटा लॉ। फास्ट लॉ कौन कहूची ना इनर्शिया को कहूची, लॉ ऑफ इनर्शिया। तेनो एटा ऑप्शन नंबर ए बी हैला करेक्ट आंसर। आ सेकंड लॉ टी कोन ना F इज इक्वल टू कोन m into a माने कोन फोर्स रो मैग्नीट्यूड दोची। तार थर्ड लॉ तो समझ जानछन्ती एवरी एक्शन इज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तेनो सेकंड थर्ड टा होची कोन उभय कोन दोची ना डायरेक्शन दोची। एटा कोन केवल मैग्नीट्यूड दोतला। लास्ट टा होची कोन ना उभय मैग्नीट्यूड आ कोन डायरेक्शन तीनटा सारा दोची। तेनु लास्ट लॉ कोन कोआ जे जो थर्ड लॉ को आ कोन कोआ जे ना एक्शन रिएक्शन हैला कोन एक्शन रिएक्शन लॉ। सेकंड टा कोन कोआ जे ना चेंज इन मोमेंटम। एटार ओरिजिनल फॉर्मूला कोन F इज इक्वल टू ना मोमेंटम P2 माइनस P1 माने चेंज ऑफ मोमेंटम हैला। सेटा को हमें वैल्यू बाहर कर लास्ट बारे कोन F इज इक्वल टू ma बुझि पाले। सेकंड टा कोन कोआ जे चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट टा कोन लॉ ऑफ इनर्शिया बुझि पाले। तेणु ठीक कोनटा हला, ठीक कोनटा हला ऑप्शन नंबर बी कोन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज डिस्क्राइब एज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया होची दी प्रकार, गोटे होची कोन इनर्शिया होची कोन ना आपण जते बस रे जाइथिबे, जते आपण छिडा हितबे बस हठात स्टार्ट हैला आपण कोन पछ भाजन। तेणु सब बॉडी चेष्टा करंती कोन तांगर जदि से मोशन ले अछि मोशन रहिया पई, जदि से कोन अछि स्टैटिक रे बा स्थिर अवस्था रे अछि स्थिर रहिया पई। समस्त सेटा कोन कहै लॉ ऑफ इनर्शिया हैला। तापर थर्ड क्वेश्चन के देखिबा ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। जदि सेटा कोन अछि यूनिफॉर्म मोशन ले अछि त कोन हबो। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो इंक्रीजिंग। कोन हबो गोटे आपन फास्ट सेटा सॉल्व करिया पे आपन जाने दरकार कोन फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला कोन F इज इक्वल टू कोन कहितली एम ए। तेनु एम ए होची कोन मास, ए होची कोन ना एक्सेलरेशन। तेनु एक्सेलरेशन पई कोन होची ना से एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जदि आपन जानथिबे ए इज इक्वल टू कोन v बाय t। v माने कोन ना v2 माइनस v1 माने तारो
फाइनाल वेलोसिटी माइनस कौन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम तेणु ये फाइनाल आउ कौन इनिशियल दीटा सामान अच्छी कौन ना यूनिफॉर्म मोशन देछि माने तार सब समान मोशनटा रोचे तेणु से कौन हो एर भैल्यूटा कौन हो जीरो हो कारण से यूनिफॉर्म मोशन रे अछि तेणु से टोटाली आम फोर्स इज कौन हो ना जीरो हो बुझिपारे जदि ये आम यूनिफॉर्म मोशन देन था v2 माइनस v1 बाहर करिए आप कहि पॉजिटिव कि नेगेटिव है एम एटे cos थीटा है हम cos थीटा जदि था कौन आमर मास और एक्सेलरेशन दुईटा कौन देथिबो ना 90 डिग्री थिबो ताले कोन हेता 0 होइथांता जेमते कि आ जदि से देथांता 180 डिग्री ताले कोन हेता नेगेटिव होइथांता बुझि पारले तेणु तापर 4 नंबर क्वेश्चन जिबे एटा कोन हला आंसरटा 0 कारण यूनिफॉर्म मोशन मींस नो चेंज इन वेलोसिटी हला जेमते कहली v2 v1 सब 0 सिट पई नेट फोर्स कोन हो 0 हो 4 नंबर क्वेश्चन अछि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स आपण कोन कहितली F इक्वल टू एम तेणु से अनुसार कोन हो ऑप्शन ए होची डाइन बी होची न्यूटन सी होची जूल डी होची केजी मीटर पर सेकंड कोनटा हो तेणु फोर्स रे आपण फॉर्मूला कोन कहले F इक्वल टू m into a तेणु ए अनुसार आपण जदि बाहर करिवे कोन हो m रो वैल्यू जदि पके मास यूनिट कोन हो ना केजी हो ए होची कोन एक्सेलरेशन माने कोन a इक्वल टू v बाय t से अनुसार आपण जदि पकेबे मीटर पर सेकंड तेणु एटा कोन कहजे 1 न्यूटन हैला फोर्स यूनिट कोन 1 न्यूटन हैला तेणु एटा कोन कोन कहजे एसआई यूनिट होची कोन फोर्स रो न्यूटन बुझि पाले तेणु आउट होची कोन ना डाइन गोड अछि डाइन कोन कहजे एटा होची कोन ना सीजीएस यूनिट मन रखते परीक्षा बार बार पचारे सीजीएस यूनिट कोन डाइन तेणु 1 डाइन इज इक्वल टू कन्वर्सन अछि हैला एटा इंपोर्टेंट लिखि दियंतु 1 डाइन इज इक्वल टू कोन 10 टू द पावर -5 न्यूटन हैला एटा बारंबार परीक्षा रे पचारे 1 डाइन इज इक्वल टू केते न्यूटन 10 टू द पावर -5 न्यूटन तापर अछि कोन जूल जूल होची कहारो ना वर्क रो यूनिट हैला बुझिपारे तेणु आंसर कोनटा हला बी न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर काहे आसले कहि देली आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एबे कोन दैछि ना व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री कोन दैछि ऑप्शन ए दैछि मिनिमम बी हेछि मैक्सिमम सी हेछि 0 डी हेछि इनफाइनाइट तेणु आपन कोन कहली अनुसार फोर्स रा आपन कोन जानि दरकार फॉर्मूला रो आपन फॉर्मूला जानि दरकार वर्क इज इक्वल टू कोन w इज इक्वल टू एफ एस हला एफ एस cos थीटा बुझी पाले फास्ट अपन कहथि वर्क इज इक्वल टू एफएस cos थीटा तेनो एठी कोन देछि थीटा रो वैल्यू केते देछि माने जो एंगल देछि सेटा केते थीटा रो वैल्यू केते देछि ना 90 डिग्री तेनो cos 90 जदि आपण वैल्यू पुट करिवे कोन हेछि बेटा 0 हेजिवो तेनो 0 हेला एठी आंसर 0 हेला किंतु मिनिमम केते रहबो ना थीटा रो वैल्यू केते हेबो 180 डिग्री माने जो आपण एप्लाइड फोर्स करचोंती आ डिस्प्लेसमेंट जोटा होछि सेटा जदि तांको भितर एंगल केते 180 डिग्री हेतिबो ताले वर्क डन क्षेत्र केते हेबो मिनिमम हेबो हला माइनस रे मैक्सिमम केते हेबो ना 0 डिग्री केते हेबो माने cos थीटा एंगल थीटा भितर केते 0 डिग्री होबो सेतले मैक्सिमम वर्क होबो बुझिपारे माने आपण जो पटे फोर्स पकोजंती सेही पटे जदि आपण डिस्प्लेसमेंट हो ताले मैक्सिमम हो जदि आपण को फोर्स जो पटे पकोजंती आ डिस्प्लेसमेंट तार कोन 1 डिग्री माने विपरीत दिगरे आपण साधारण कथा चिंता कर जदि आपण कांथ को पेलुचंती सेटा कोन होची कांथ फोर्स पकोजंती कांथटा आपण को ऊपर को फोर्स पकोजंती माने 180 डिग्री होची तेनो सेत पई किछ वर्क डन होनी जदि आपण टेबल टी को धक्का दोचंती टेबल को फोर्स आपण जो डायरेक्शन दोचंती टेबल टा सही डायरेक्शन आकु जाउची तेनो सेत पई मैक्सिमम सेडी होची बुझि पारले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एंटर आंसर कोन हला f इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू f into d cos थीटा डी आपण s नै परंती d नै पर जाय परंती cos 90 डिग्री कोन वैल्यू 0 सेति वर्क कोन हला 0 हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 6 नंबर एनर्जी पोजेसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड कोन कहजे ए होजी पोटेंशियल एनर्जी बी होजी हीट एनर्जी सी होजी काइनेटिक एनर्जी डी होजी सोलर एनर्जी कोन हबो ना जदि ओटे बॉडी कोन थिबो मोशन रे थिबो सेटा कोन कहजे सी जो एनर्जी टा कोन कहजे ना काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोन हाफ एम v स्क्वायर एम होजी कोन मास v होजी कोन वेलोसिटी तेनो कोन कहजे काइनेटिक एनर्जी आउट कोन होची पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला कोन ना एम जी एच एतरे मास जे होची ग्रेविटेशनल जो वैल्यूटा ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एच होची कोन केते हाइट रे अछि बुझि पाले हीट एनर्जी जानचंती आ सोलर एनर्जी जो सूर्य पाखरे अछि होची कोन सोलर एनर्जी बुझि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एकर आंसर कोन हला ना एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी उडर फॉर्मूला कोन हाफ एम v स्क्वायर तब नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी आपन फास्ट कहितली स्केलर आ वेक्टर भितर मन रखिया पे स्केलर पे कोन कहितली ना W A S T E T तापर कोन टाइम पावर मास आ डेंसिटी एति हला कोन हमर स्केलर क्वांटिटी तो या भीतर देखि दियंतु एटा मन रखि दियंतु खातर लिखि दियंतु एटा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी अपन जहा भी बाहर करबे या दर बाहर करबे तो या भीतर कोन अछि स्केलर क्वांटिटी पचर जी वन का तेनु देखि देबे एक्सेलरेशन अछि कि एटा ए होजी कोन एरिया मन रखथिबे हला बारंबार एटा भूली पारे ए होजी कोन एरिया तेनु एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पावर आ वेलोसिटी कोनटा ठीक हबो
ऑप्शन नंबर सी हबो पावर टा करेक्ट आंसर कारण आ सब गुडा कोन अछि ना वेक्टर क्वांटिटी अछि कारण एटी ए हार भितरे पी होजी कोन कहथिली टाइम पावर तेनु पावर टा होजी कोन स्केलर क्वांटिटी बुझी पाले ऑप्शन नंबर सी हला करेक्ट आंसर पी पावर टा हला कोन स्केलर क्वांटिटी कारण यार कोन अछि केवल मैग्नीट्यूड अछि डायरेक्शन नाही सेते कोन हला स्केलर क्वांटिटी हला नो एबे क्वेश्चन नंबर 8 देखा व्हेन ए बॉडी फेल्स फ्रीली व्हिच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट साधारण कथा कोन हुए मैं ऑप्शन नंबर ए मैग्नीट्यूड ना फ्रिक्शन ना ग्रेविटेशनल ना मस्कुलर कोनटा ना ग्रेविटेशनल साधारण कथा गोटे फ्री फॉलिंग बॉडी पड़े तळକୁ से काहे की पड़े ना ग्रेविटेशनल फोर्स पई से तळକୁ पड़े बुझी पाले तेन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन यार आंसर द ग्रेविटेशनल फोर्स हो तेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ए मैन कैरीज ए 20 केजी लोड ऑन हिज हेड एंड वर्क्स गोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देछि 10 मीटर्स ऑन ए लेवल रोड वर्क डन इज डेस आपन वर्क डन आपन केते पचार फॉर्मूला आपन जानथे w इज कोन fs cos थीटा तेणु एठी आपण वैल्यू ए जो 20 देखि वैल्यूटा कोन अछि 20 केजी माने कोन दिछि मास दिछि 10 दिछि कोन ना आपण कोन दिछि ना हमर डिस्टेंस बा डिस्प्लेसमेंट जहा दिछि डिस्प्लेसमेंट दिछि जेनु एठी देखिबे कोन दिछि ना ऑन हिज हेड गोटे लुकोटे धरि हंतु एटा लुकोटे गोटे चित्र तो हुएनी तबे लुकोटे कोन ता मुंडो पर बोझ रखछि से जाउछि तेनु बोझटा रखछि बोझटा जो रखिछि से तळको तार फोर्स पकोथबो हला तेनु फोर्स आ डिस्प्लेसमेंट कोन दोछि ना से सीधा रास्ता रे जाउछि तेनु ए जो रास्ता रे जे 10 मीटर जो लेवल रोड रे जाउछि से जो फोर्स टा पकोछि आ जो डिस्प्लेसमेंट ता भितरे एंगल केते ना 90 डिग्री तो 90 डिग्री ने हम वैल्यू पके थीटा इज 90 जदी वैल्यू पकेबे तने वर्क डन इज कोन हे जिवो ए जो cos 90 रे वैल्यू केते 0 तेनु हमर जो वर्क डन हला सेटा 0 माने से किछि काम करू नाही लुकोटा काहे कि ना जे बुझरा तळको पडुछि आ डिस्प्लेसमेंट ता भितरे केते डिग्री ना 90 डिग्री होछि बुझी पाले जदी एटा 90 डिग्री हेनु थांता तले हम वैल्यूटा बाहर करि फारि थांते तेणु कौन है ऑप्शन नंबर बी 0 जूल कारण द फोर्स वर्टिकली एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल इटा भितर परपेंडिकुलर तेणु से वर्ड केतेला 0 हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज डेस ऑप्शन नंबर ए एनर्जी बी होजी फोर्स सी होजी पावर डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ माने कोन वर्क अपॉन टाइम हला सेटा को कोन कहै छै डबल बाइट सेटा कोन कहै छै ना पावर पावर इज इक्वल टू कोन वर्क अपॉन टाइम तेणु यार यूनिट कोन हे पारे वर्क यूनिट कोन ना जूल हला जूल पर टाइम बुझी पाले तेणु याकू कोन कहै छै 1 वाट कोन 1 वाट हला तेणु पावर रो यूनिट कोन हला ना 1 वाट सेटा कोन कहै छै 1 जूल अपन टाइम माने कोन सेकंड आउ हला 1 जूल पर सेकंड कोन कहै छै 1 वाट परीक्षा बारंबार पचार एटा तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन एटा उत्तरटा कोन हला वर्क अपन कोन टाइम सेटा कोन कहै छै पावर कहै छै तेणु आउट क्वेश्चन अछि ए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट ना 1 किलोवाट ना 500 वाट ना 735 वाट एटा कोन 1 हॉर्स पावर होची कोनथरे मपा जाय हॉर्स पावर कहार नै जो आपण कोन कहली वाट डन मपा जाय केमते हॉर्स पावर तार बडी यूनिट अछि तेनु 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कोन मन रखिबे 746 वाट बुझी पाले एटा परीक्षा रे पचारे हैला 746 वाट तेणु ऑप्शन नंबर कोनटा हला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेट ऑफ ए बॉडी इज डेस वेट पचारछि हला माने डब्ल्यू पचारछि ए जो वेट आपण मापन दिसे तर कोन यूनिट आपण पचारछि फार्मूला मास इनटू ग्रेविटी मास बाय वॉल्यूम फोर्स इनटू डिस्टेंस मास इनटू वेलोसिटी कोन ना वेट जरा मापन दि मने पकांतु आपण जो छोटो छंग अंगनवाड़ी रे जो मपा जाय सेते ता गोटे अंगनवाड़ी जो मपा गोटे जो धरन कुकुडाडे मपा जाय कोन तार गोटे टंगा भले जिंस ताको टंगी दे तेनु जो ग्रेविटी जो से तळको खाचु थे तळको टाणिया जो से जो तापर फोर्स पकोजी सेटा कोन कहै छै ना वेट कहै छै तेनु कोन हमर मास इनटू कोन ग्रेविटी हला ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने जते स्पीड रो टाणुची सेटा कोन कहै छै वाट कहै छै वेट कहै छै हला तेनु वेट रो फार्मूला कोन रहला मास इनटू ग्रेविटी बुझी पाले सारन कथा कुकुडा आने पे जाइथि देखिते टंगा होते कुकुडा को तेनु सेटा कोन कहै छै वेट कहै छै वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी जेटा कि कोन कहै छै मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बुझी पाले तेनु नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार वैल्यू केते 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कोन वेलोसिटी अपॉन टाइम हला एटा कोन एटा वेक्टर क्वांटिटी तेनु दिटा चिन्ह सेति दिया हबो इज इक्वल टू v बाय t हला तेनु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कोनटा ठीक हबो ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किंतु हला बरे बरे परीक्षा रे पचारे किंतु ए जो अर्थ हमर अछि हला अर्थ रो एमि धर जो अर्थ हला यार इक्वेटर हला धर जो एटा इक्वेटर पाखरे यार वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किंतु आपण जो पोलर रीजन को जिबे यार कोन होय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेटा आस्ते आस्ते बढ़िबो मने रखिथिबे ए जो पोलर रीजन रे इक्वेटर थारू अधिका ए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू टा बुझी पाले
କୋଉଠି ଅଧିକା ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ, କାରଣ ଯୋଉ ଯେ ଆମର ଆକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଉ ଖାଚିବ ଉପର ପୋଲାର ରିଜିଅନରୁ ତାର ଫୋର୍ସଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱେଟରରୁ ସିଧା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଫୋର୍ସଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଯଦି କରାଯାଏ ସେଟା କେତେ 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ବେଳେବେଳେ କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥାଏ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ କହିହବନି କେତେ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଇକ୍ୱେଟର ଠାରୁ ପୋଲାର ରିଜିଅନଟା ତାର ଆକ୍ସେଲରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଧିକା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବେ, ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା 9.8 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧରାଯାଏ ଏଭରେଜ ଭାବରେ ଆଉ। 14 ନମ୍ବର ଏବେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ masses is directly proportional to ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି କଣ the sum of their masses, the product of their masses, the direction between them, the square of the distance between them ହେଲା। ইয়াର ଆନ୍ସର କଣ ନା ଲ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନ, ନ୍ୟୁଟନ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କଣ ଲ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନ, ଯାହାର ଏଫ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଫ ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ m1 into m2 divided by r square ହେଲା। ଏମ୍ ହଉଛି କଣ m1 କଣ ଯଦି ଦିଟା ବଡିକୁ ଧରିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମାସେସ୍ ବଡି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମାସେସ୍ ବଡି, ଦିଟା ଯଦି ତାର ମାସ୍ ହୁଏ m1 ଗୋଟେ ହୁଏ m2, ଆଉ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି r, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ f ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ m1 into m2 by r square। ଯଦି ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବା g, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ g ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଏମିତି ଯଦି ୟୁଜ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ f ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ g m1 into m2 by r square। ତେଣୁ ये जो f ଟା ଖାସ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ना प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, माने ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। अब जदी पचार तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार सहित ये जो भीतर डिस्टेंस होतला तार स्क्वायर सहित कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बुझी पाले। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस जेमता कि f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 by r square। तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 15 नंबर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एटी देखो सब गुडाक प्रेशर यूनिट अच्छी है, तेणु परीक्षा एमती पचारे। तेणु ऑप्शन नंबर ए हूँ बार ना बी हूँ पास्कल ना सी हूँ टोर ना डी हूँ एमएमएससी, ये सब गुडाक प्रेशर यूनिट अच्छी, तेणु ता भर एसआई यूनिट कौन होची ना पास्कल है। पास्कल ये जो आउ कौन अच्छी एसआई यूनिट है आप पचार सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट कौन ना BARYE है बारई बारई बारई। तेणु आप पचार जे 1 बारई इज इक्वल टू केते 1 बारई इज इक्वल टू 1 डायन है 1 डायन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप प्रेशर फर्मुला जो देखिए P इज इक्वल टू है F बाय ए, माने गोटे यूनिट एरिया रे जते फोर्स पड़ू जदि हम यूनिट आकार देखिया एफ रो यूनिट केते 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, सेटा कोन कहै छै 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहै छै हैला। ए जो 1 बारे हैला 1 बारे से फॉर्मूला अपन जो फोर्स रो सीजीएस यूनिट देखिए कोन कहतली 1 डाइन, तेन 1 डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जदि हमरो मीटर जो एरिया रो जो देखियो ताने सेंटीमीटर स्क्वायर, से कोन हैला जदि अपन धरि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जदि अपन सीजीएस यूनिट देखियो 1 बारे इज इक्वल टू 1 डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर हैला। आउ कोन अछि ए जो टोर अछि, टोर टा भी होछि कोन गोटे यूनिट, किंतु सेटा एसआई की सीजीएस में तेनो मन रखते परीक्षा में पचारे 1 टोर रो टोर इज इक्वल टू केते 133.3 पास्कल हैला। त मन रखिबे 1 टोर इज इक्वल टू कोन 133.3 पास्कल। आउ जो एटम गोटे अछि एटम 1 एटम हैला, माने एटॉमिक प्रेशर जो हम एटम आकार में प्रेशर जो मपा जाए एटॉमिक प्रेशर सेटा भी अछि, तेनो से अनुसार यदि मन रखिबे ताले 1 टोर इज इक्वल टू हैला 1 by 760 एटीएम, माने एटम क्षेत्र में जदि हमें मापिबा ताले सेटा कोन एटॉमिक प्रेशर हैला कुआ जाए। तेनो बुझी पारले, तेनो यार आंसर कोन हैला ऑप्शन नंबर बी पास्कल हैला। एच सेटा एसआई यूनिट होला कोन जोटा कि मपा जे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैला, जदि हम वैल्यू पुट करिवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, व्हिच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, कोनटार को लॉ टा जो हमें रिलेशन काहा का सहित पाउछु फोर्स मास और एक्सेलरेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट लॉ कोन थिला आपन कहितली लॉ ऑफ इनर्शिया, तेनो सेथिरे तो नै सेकंड लॉ रे F इज इक्वल टू कोन थिला m into a, इठो कोन अछि फोर्स भी अछि मास भी अछि एक्सेलरेशन, तेनो सेकंड लॉ रे हम कोन पाउछु फोर्स मास और एक्सेलरेशन रो तीनटा रो रिलेशन पाउछु। थर्ड लॉ रे तो आपन कोन कहली एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तेनो ओडा ठीक होला ऑप्शन नंबर बी हैला करेक्ट आंसर। F is equal to m, से नेक्स्ट सेकंड लॉ रे हम एसो रिलेशन पाउछु। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज डैश, ए होची फोर्स, बी होची पावर, सी होची एनर्जी, डी होची कोन एक्सेलरेशन। तेणु जो एबिलिटी टू डू वर्क माने वर्क करिया पे जो एबिलिटी सेटा को हमरो कोन कहै छै एबिलिटी टू डू, आउडी आगुर थिला कोन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क थिला हैला, एटा किंतु एबिलिटी टू डू वर्क माने वर्क जते कोन करू से करि पारे सेटा कोन कहै छै एनर्जी। मन रखिबे रेट ऑफ चेंज ऑफ जते थिबो सेटा कोन पावर होबो, जते कोन थिबो ना एबिलिटी टू डू वर्क सेटा कोन कहबो एनर्जी हैला। मन रहिला एबिलिटी टू डू वर्क को कोन कहै छै एनर्जी कहै छै।
ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର যেটাকি এনার্জি ডিফাইন্ড এজ দ্য ক্যাপাসিটি টু ডু ওয়ার্ক। 18 নম্বর কোশ্চেন ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডন এগেনস্ট গ্রাভিটি টু লিফট এ বডি টু অফ মাসেস এম টু এ হাইট এচ এই ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରୁ ପକେଇବା ସେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା ଆକ୍ଟ ହୁଏ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏଟା କେତେବେଳେ ପଡେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ପଡେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜି ତେଣୁ ସେଟା ଫଳ କ'ଣ ହବ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର କାହା ପାଇଁ ପଡେ ନା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ପୋଟେନସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏମ୍ ଜି ଏଚ୍ ହେଲା এটা ଯୋଉ ୱାର୍କ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଇନ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ যেটা କି ଫୋର୍ସ ହଉଛି କ'ଣ ଏମ୍ ଜି ଆଉ ଏଚ୍ ରହିଲେ ଏଚ୍ ତେଣୁ 19 ନମ୍ବର ବି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ମୋସନ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଏକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ରିଏକ୍ସନ ସି ହଉଛି ଇନର୍ସିଆ ଡି ହଉଛି ଫ୍ରିକ୍ସନ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଟା କାହା ଉପରେ ନା ଇନର୍ସିଆ ଉପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଟା କାହା ଉପରେ ନା ମୋସନ ର ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ର କାହା ଉପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଲ ଟା ଏକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ଉପରେ ବା ଆପଣ ଫୋର୍ସ ର କ'ଣ ଉଭୟ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ଥାର୍ଡ ଲଟା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ଏଭ୍ରି ରିଏକ୍ସନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଅପୋଜିଟ ରିଏକ୍ସନ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଦେଖିବା ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଏ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଆର୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ এটা কোন কুହାଯାଏ থ্রস্ট কুହାଯାଏ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ନା ଫ୍ରିକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଫ୍ରିକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ ଦିଟା ବଡି ଲାଗିକି ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେଟା ଫ୍ରିକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ହୁଏ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ କ'ଣ ଦିଟା ବଡି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଥିବେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଇଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ପକଉଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଡିକୁ ଟାଣୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଇଜିକାଲ ଦିଟା ବଡି ଉପରେ ଯଦି ଦିଟା ବଡି ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ m1 ଇଣ୍ଟୁ m2 ହେଲା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ r ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ ଦିଟା ସାରା ଫୋର୍ସ ୟା ଉପରେ ବି ୟା ଉପରେ ବି କ'ଣ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥ ଆଉ ଧର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଫୋର୍ସ ପକଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାର ଧର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ତଳକୁ ପଡିଲା ଦି ଜଣ ସାରା କ'ଣ ଫୋର୍ସ ପକଉନି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ପୃଥିବୀକୁ ଟାଣୁଛି ପୃଥିବୀ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଟାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଫୋର୍ସ କାହାର ଅଧିକ ଫୋର୍ସ କାହାର ଅଧିକ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ କ'ଣ ଏମ୍ ଏ ତେଣୁ ଯାହାର ମାସ ଅଧିକା ହବ ତାର ଫୋର୍ସଟା ଅଧିକା ହବ ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ମାସ ଅଧିକା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଦଉଛି ତେଣୁ ଦିଟା ବଡି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦି ଜଣ ସାରା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦି ଜଣ ସାରା ଟାଣୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଫୋର୍ସ ଅଧିକା ହବ ସିଏ ଅଲଗାଟାକୁ ଟାଣି ନେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମଟି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ ଫୋର୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ନହେଲେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକଉଛି ଦିଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ଅଛି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଫୋର୍ସଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଫୋର୍ସଟା ଆନ୍ସର ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଫୋର୍ସଟା ଉତ୍ତର ହେଲା ତେଣୁ ଦେଇଛି ଏ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସେପ୍ ଅଫ ଏ ବଡି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଏ ମୋସନ ନା ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ ଏ ମୋସନ ନା ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବଡିର ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ହଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମୋସନ ଗୋଟେ ଯଦି ବଡି କ'ଣ ଥିବ ଷ୍ଟାଟିକରେ ଥିବ ସେ ମୋସନ ହଉଛି ଯଦି ମୋସନରେ ଥିବ ଷ୍ଟାଟିକ ହଉଛି ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଡିରେକ୍ସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଫୋର୍ସ ପକେଇଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡିଟେ ଯାଉଥିଲା ଏପଟେ ଫୋର୍ସ ଯଦି ପକେଇବା ଏପଟେ ଯାଉଛି ବା ଅଧିକା ଯାଉଛି ଏମିତି ତେଣୁ ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଲ୍ ଅଫ ଦିସ୍ କ'ଣ ଉଭୟ ଯୋଉ ସେପ୍ ଅଫ ଏ ବଡି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଏ ମୋସନ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ ଏ ମୋସନ ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଏ ବଡି ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ମୋସନ ଯୋଉ ମୋସନ ଚେଞ୍ଜ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରିକ୍ସନ କୁହାଯାଏ ନା ମୋମେଣ୍ଟମ କୁହାଯାଏ ନା ଇନର୍ସିଆ କୁହାଯାଏ ନା ଇମ୍ପଲ୍ସ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଇନର୍ସିଆ ଯେଟା କି କ'ଣ ନା ବଡି ଯଦି ଷ୍ଟାଟିକରେ ଥିବ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିକରେ ଥିବ ସେ ଯଦି ମୋସନ ହେଲା ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯଦି ସେ ମୋସନରେ ଥିବ ଯଦି ରହିଗଲା ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କ'ଣ ଇନର୍ସିଆ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କାରଣ inertia resist the motion change ତାପରେ ଅପସନ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ when is body said to be under the free fall when it falls under the gravity alone when the air resist acts on it when the thrown upward when it removes it uniform speed କୋଉଟା କହିଲି free fall କେତେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ under gravity when it falls under the gravity alone ବୁଝିପାରିଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତେଣୁ যেটা କହିଲି ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ which of the following is not a property of matter ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରର ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡିର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ ଏ ମାସ୍ ବି ଇନର୍ସିଆ ସି ଏନର୍ଜି ଡି ଭଲ୍ୟୁମ କୋଉଟା ନୁହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପଡିଛି ତାର କୋଉଟା ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ ତାର ଡେଫିନେଟ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଅଛି ଇନର୍ସିଆ ଯେଟା କି ସେ ଷ୍ଟାଟିକରେ ଯଦି ମୋସନରେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କାରଣ ଏନର୍ଜି କେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତାପରେ କିଛି ଆମେ ଫୋର୍ସ ପକଉ ଯେମିତି କି ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିକ ଯଦି ଥିବ ସେଟା ମୋସନକୁ ଯିବ ଯଦି ମୋସନ ଥିବ ଷ୍ଟାଟିକ ତେଣୁ କୋଉଟା ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା
ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଇଟସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ ହ୍ୱେନ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍, ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଡନ୍ ହେଲା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ, ନା ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଜିରୋ, ନା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଜିରୋ, ନା ବୋଥ୍ ଆର୍ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ। ହେଲା ୱାର୍କ ଡନ୍ ନେଗେଟିଭ କେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ ହ୍ୱେନ୍, କେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ନେଗେଟିଭ। ଆପଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ କସ୍ ଥିଟା। ଏ ଯୋଉ ଏଟା ମିନିମମ୍ କେତେବେଳେ ହବ ବା ନେଗେଟିଭ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଥିଟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବା ଦରକାର ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିବେ ଦି ଜଣ ସାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ। 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ଦି ଜଣ ସାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯଦି ଥିବେ ସେଟା ହବ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅପୋଜିଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ୱାର୍କ ଡନ୍ ଟା ନେଗେଟିଭ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଟପିକରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକ୍ସ ଗଲେ ତାପରେ ଟପିକଟି ଆମେ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନୂଆ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ।